Very good evening to everyone. Please let me know when I have to start. So I shall wait till then. So Team PSSC, please let me know when do I have to start. You can start, ma'am. It's go. All right, thank you so much. All right, a very good evening to all the participants who are here to attend this session on how to plan bagless days in school. It's a very interesting topic and something that we are supposed to do for our students, right? So let us start off. I hope my screen is visible to everyone and I'm audible and visible to everyone too. If so, please put it down in the chat box. All right, thank you so much. So, starting off, what is bagless school concept? Let us first understand this. Bagless school encompasses teaching methodology involving complete interaction where children are encouraged to collaborate and help each other. Now we're talking about children in the school who come to school with a school bag with all their textbooks and things every day, and the dependency on learning is through the books, and the teachers also take help of the books that are carried by them. So they have their books, they have their notebooks, and the learning happens that way, right? So what we are looking at is learning, but through a different method altogether, right? So with this view, schools are supposed to follow the bagless pattern of learning in which the child is free from the burden of heavy bags. So he doesn't have to carry the school bag. He can come, empty handed to school and then, learn through a different method altogether. As per the new education policy, bagless days will be encouraged throughout the year for various types of enrichment activities involving arts, quizzes, sports, vocational crafts, etc., etc. Okay, so National Education Policy 2020 has its say on bagless days. बिना बैग के बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उसमें हम किस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे कि वो लोग सीख सके. ओके, फॉर द सेंटर recently instructed states to provide for at least 10 bagless days for children in classes 1 to 12 each month, and introduce vocational training for students in classes 6 to 12 in line with the provisions of the National Education Policy 2020. So it says that at least 10 days in a month should be bagless days. Now, maybe, 10 days in a month may sound a little too much for everyone, but at least if we are making an attempt every week, maybe a Saturday, or, we can dedicate 1 or 2 days in a week, which can help us to have bagless days in school. The new education policy says that all students will participate in 10-day bagless period where the teachers have to plan innovatively to engage children in fun filled learning. So बिना किताब के बच्चे जब स्कूल आते हैं और हमें पढ़ाना भी है और इंटरेस्टिंग भी बनाना है और फन फिल्ड भी होना है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा ये सोचना पड़ेगा. Now that this has been in place for some time, teachers can put down in the chat box if they have already been doing something, then I would come to know. Otherwise, definitely I will be giving you
my point of views on bagless days, definitely. Okay, so NEP ensures that every student shall participate in a 10-day bagless period sometime during grades 6 to 8, where they shall intern with local vocational experts such as carpenters, gardeners, potters, आर्टिस्ट एक्सेट्रा। देखिए अपने हर स्कूल में कोई ना कोई फैसिलिटीज तो होती है। देखिए बैक हैंड जॉब्स चलते रहते हैं। वी हैव carpenters coming to school, we have the gardeners coming to school, or we have the local artisans who are across the place that you live. पॉटर भी मिल जाता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिस्ट भी मिल जाते हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि उन दिनों जब हम स्कूल में बैगलेस एक्टिविटीज करना चाहते हैं, फैसिलिटेट करें कि ये सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग बच्चों को मिल सके। खासकर 6 to 12 में क्यों बोला जा रहा है, 6 to 8 में इसलिए बोला जा रहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग अगर हम इस लेवल पे देने लगते हैं तो बच्चों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलती है, राइट? नाउ आई वुड से दैट दिस इज द टाइम, दिस इज द पीरियड व्हेन यू शुड expose them to different kinds of work that is available around, जिससे कि उनको एक तो डिग्निटी ऑफ लेबर सीखना बहुत जरूरी है। डिग्निटी ऑफ लेबर का क्या मतलब है? हर तरह की काम को रिस्पेक्टफुल नजर से देखना, राइट? पीपल शुड बी एबल टू रिस्पेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ occupations which are around. So even in the school, if you have helpers, the class 4 employees also, students have to talk to them respectfully, deal with them respectfully and look upon their work respectfully, right? हमें कई बार जैसे क्लासरूम गंदा भी होता है तो हम बच्चों से कहते हैं ना कि ओके, नाउ टुडे फॉर दिस वीक cleaning activity will be taken care by our own class. We will not engage our housekeeping support staff to clean the classrooms. So that much work also, if we start doing it, children will understand the effort that every person is putting in the class. So this is what I'm trying to say, that dignity of labor has to be encouraged and established in every child of the school, right? Okay, so the policy says that every student will take a fun course during grade 6 to 8 that gives a survey and hands-on experience of a sampling of important vocational crafts such as carpentry, electric work, metal work, gardening, पॉटरी मेकिंग एक्सेट्रा। देखिए आपके आसपास इन सब कामों से रिलेटेड लोग भी होंगे। You will have workshops also, you will have small factories also. This is the time we can connect with, see parents भी होंगे आपके अलग अलग वर्क से रिलेटेड वाले। So you can always connect with the parents also and ask them to support you in these activities. देखिए गार्डनिंग तो ऐसा है, गार्डनिंग आप स्कूल में कर सकते हैं या लोकल जो आपका पार्क है आसपास का उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एवरी गार्डन और पार्क विच इज वेल मेंटेन्ड विल हैव अ गार्डनर। आप इनवाइट कर सकते हो, आप उनसे कितनी सारी चीजें सीख सकते हो। प्लांट्स लगाना या सैपलिंग लगाना खाली एक काम नहीं होता, प्लांट की देखभाल करना, उसके बारे में नॉलेज, प्लांट के बारे में जानना, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट के टाइम पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह का खाद हम लोग किस तरह के प्लांट के लिए डालते हैं, कब बोते हैं, कब काटते हैं, कब उसकी फ्लावरिंग टाइम है। सी देयर इज अ लॉट दैट चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम वन गार्डनर, ठीक है? जैसे मेटल वर्क का है, सो फैक्ट्रीज या वर्कशॉप्स जो क्लोज बाय होती है वहां पर भी आप बच्चों को विजिट पे ले जा सकते हैं। वहां के वर्कशॉप के बंदे को आप स्कूल में बुला के टॉक देने के लिए या उनसे इंटरव्यू लेकर उनके कामों को समझने का काम ग्रुप्स में बच्चों को भेज सकते हैं। यू कैन सेंड देम इन ग्रुप्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कशॉप्स एंड टेल देम टू डू अ सर्वे, tell them to find out information
and collected, right? All these things will help them to have a bigger idea about the kind of work which is done around. Pottery तो ऐसा है कि आप स्कूल में भी किसी पॉटर को अपने पॉटर व्हील के साथ बुलवा लो, मैं बता रही हूँ प्री प्राइमरी से लेके 12th तक के बच्चे बहुत हैप्पीली एंजॉय करेंगे वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अगर उनको मिलता है, राइट? सो कीपिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ practical exposure in mind, students will be able to visit different places. Not only workshops and all, when I talk about field trips, I will tell you which all places can be used. तो आप फील्ड ट्रिप्स यूज कर सकते हैं, आप किसी को स्कूल में इनवाइट करके यू कैन लर्न फ्रॉम देम, यू कैन हैव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, you can have co-curricular activities also planned during these days, right? So as part of No School Bag Day, on every working Saturday, certain states have started it. जैसे ये अभी मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर कर्नाटका का, तो कर्नाटका में they are following it on Saturdays. So what they have decided is that every Saturday will be a no bag day and they will be doing different kinds of activities. So in logo ne the government has directed that you can have your co-curricular activities, you can have your sports, you can have your games, recreational activities, कुछ भी है वो आप उस समय पे कर सकते हैं. आप जो टॉपिक्स, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाई का टाइम निकला जा रहा है, I can't miss out on 4 days in a month, then on those days you can have sessions with students which can include quizzes, you can have practicals happening, you can have experiments happening, you can have say MCQ type of a question examination on computers. So you can use a lot of learning and teaching time also. Only thing is we are asking them not to carry books. So आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग एक्टिविटीज सब्जेक्ट वाइज प्लान कर सकते हो. एक टीचर ने अगर अपना से एमसीक्यू वाला एक्टिविटी प्लान किया है तो दूसरा क्विज कर सकता है, तीसरा अपना दे कैन गो ऑन यू कैन हैव एन एक्सटर्नल क्लासरूम. एक्सटर्नल क्लासरूम इज आप क्लासरूम से बाहर निकल के आपने गार्डन में या कहीं और जहां पर भी फीजिबल है वहां बैठ के आपने अपनी क्लासेस चलाई, जैसे जिससे कि नेचर से कनेक्ट बच्चों को मिले. सो दीज आर थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन such days. So hands-on experience is what we are looking at on these 10 days. So we have to see that 10 days of fun-filled activities. So 10 days तो जो minimum बोला जाता है, but you can always have it on a regular basis. जैसे मैंने बोला 4 days in a month, every Saturday को भी अगर आप रखते हैं तो learning will become a fun time for children. Children will wait for such days. The main objective behind this scheme is for physical, mental and intellectual development of students. देखिए, किताब से पढ़ना और बोर्ड पे लिखना और टीचर सिर्फ पढ़ाई की बातें ही क्लास में 8 पीरियड तक करते हैं या 5 पीरियड तक करते हैं रोज, तो बच्चों को उससे एक दिन की छुट्टी हफ्ते में देना बहुत अच्छी बात है, राइट? सो दे गेट 1 day off from formal studies. Formal studies is using the textbook, notebook, class board and teacher teaching in that lecture mode or something, while at the same time other curricular activities can give them a lot of relaxation. आपने सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आपकी स्कूल की जो भी कॉम्पिटिशंस है, आपकी स्कूल में होने वाली लिटरेरी एक्टिविटीज है, उनको सबको सैटरडेज में डिवाइड कर दिया तो आपका वो दिन बहुत अच्छे से निकल सकता है. Right? Now, to facilitate bagless learning, the schools must be equipped with the facilities such as a well-stocked library. देखिए, लाइब्रेरी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बुक रिव्यू करवा सकते हैं. लाइब्रेरी, एक क्लास आप लाइब्रेरी में बैठ गया, आपने ग्रुप्स में बच्चों को बिठाया, आपने उनको एक एक बुक दी, उसकी बुक रिव्यू लिखने को बोला या उस बुक के ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने को बोला. लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट particular book. You can spread it for 2 weeks. एक दिन आपने बुक रीडिंग सेशन रख लिया और दूसरे वीक में आपने उससे रिलेटेड एक्टिविटीज रख ली. सो इट कैन बी एनीथिंग. सो दैट इज विद द लाइब्रेरी. ऑडियो विजुअल रूम में आप बच्चों को
आप कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं, आप कोई अच्छी एजुकेशनल मूवी दिखा सकते हैं, उनको आप कई बार बहुत अच्छी क्लिपिंग्स होती है, आपने खुद प्रिपेयर करी है कोई प्रेजेंटेशन तो वो दिखा सकते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स. A certain part of the school can be using the audio visual room. Science lab for experiments, computer lab for different activities. देखिए पीरियड वाइज अगर आप देते हैं तो कंप्यूटर लैब में भी आप उनको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज दे सकते हैं करने के लिए. ट्रांसपोर्टेशन फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर गोइंग फॉर अ फील्ड ट्रिप, तो आपको अपनी स्कूल बसेस की जरूरत पड़ेगी. प्लेग्राउंड फॉर ऑल द स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज, और एक्टिविटी म्यूजिक डांस रूम फॉर ऑल द कल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज. कल्चरल भी हो सकती है, यू कैन हैव लिटरेरी ऑल्सो. तो अगर आपके पास ये 7 डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स है, 7 से ज्यादा ही हो जाएगी क्योंकि साइंस लैब में भी फिजिक्स लैब, कंप्यूटर लैब, यस यू कैन डू एलिक्यूशंस आल्सो. आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लैब है, आपका एक जनरल लैब भी होता है, उसके अलावा एक्टिविटी रूम होता है, म्यूजिक रूम होता है, डांस रूम होता है, मैथ्स मैथ्स का क्लब रूम होता है, मैथ्स लैब भी होता है, इंग्लिश लैब भी होता है कई स्कूल्स में. So different labs can be utilized for that particular day, and you can divide the entire school into different activities. एक एक्टिविटी खत्म हुई तो आप दूसरे में जाइए, तो दूसरा वाला एक्टिविटी वाला तीसरे में चले जाएगा. सो इन दिस नीड्स अ प्रॉपर प्लानिंग, बट इट कैन बी डन. ये स्टोरी टेलिंग लिटरेरी एक्टिविटी में आ जाएगा. आप उसको देखिए ओपन स्पेस में भी यूज कर सकते हैं, आप उसको जैसे पपेट शो कर सकते हैं, आप बहुत सारी स्पेलिंग बी, स्पेलिंग कॉन्टेस्ट कर सकते हैं. एनीथिंग दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ entertainment mixed with learning. All right, so these are the facilities that is required. Yes, word B also, Madhu agreed. So bagless days should be observed to break the monotony of regular studies. ये रोज का जो एक ही तरह से पढ़ते हैं ना, उस monotony को तोड़ने के लिए, to encourage creative thinking and to make learning more enjoyable with a plethora of activities. दुनिया भर की एक्टिविटीज आप सोच सकते हैं अपने क्लास के लिए, और अपने लैंग्वेज को, वोकैबुलरी को, उसको सबको इंप्रूव कर सकते हैं. अंताक्षरी ऑफ वर्ड्स, वेरी वेरी गुड. यू कैन हैव वर्ड ग्रिड्स मेड, यू कैन हैव कॉम्पिटिशंस फॉर क्रॉसवर्ड्स, बहुत सारी चीजें. अब देखिए इसमें एक पिक्चर देखा है, कुछ नहीं मिला, आपके जो पाथवे है, चौक दे दिया बच्चों को, उधर ही बच्चों को कोई एक्टिविटी करने को दे दिया. सो दिस इज समथिंग दैट दे कैन लर्न, एंड आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज है, आपके क्राफ्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज है. देखिए यहाँ पे तो बच्चे लीव्स को लेके बैठे हैं. एडिबल लीव्स, इनएडिबल लीव्स क्या है समझ भी नहीं. एक्चुअली nature walk is something that children really enjoy. If you have good plants in your school and space in your school, you should utilize your school or a nearby park or a garden where you can take the children, maybe class wise, एक छोटे छोटे ग्रुप्स में ले जा सकते हैं. Exhibitions is a bigger task, so you can plan for an exhibition and you can have an exhibition on weekends for the students. Yes, group discussions also, very very good. So what is the importance of co-curricular activities? अब co-curricular activities की जब बात करते हैं तो जैसे कई लोगों ने भी लिखा है कि हम डिबेट्स करते हैं, क्विजेस करते हैं, रेसिटेशंस, म्यूजिक, डांस, योगा, स्पोर्ट्स, ड्रामेटिक्स, role play, very very good. All these things are something that children can be encouraged for, right? आप देखिए राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट, अगर आप उसको दोनों साथ में देते हैं, मतलब आर्ट से रिलेटेड भी और आपके रैशनल थिंकिंग और डीप थिंकिंग भी साथ में बच्चों से कराते हैं, इसका मिक्सचर बच्चों को देते हैं, तो बच्चे इसमें बहुत अच्छे से अपने आप को प्रूव करते हैं. देखिए एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है दैट चिल्ड्रन कैन डू. यू कैन हैव थिंक ऑफ, और पता है बिना पैसे खर्च किए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप अपने
क्लासरूम में, क्लास के बाहर, आपके गार्डन में, ओपन स्पेस पे, कहीं पे भी कर सकते हैं। एज रिलेटेड एक्टिविटीज प्लान करिए जिससे कि बच्चों को मजा भी आए और दे कैन रिलेट ऑल्सो। देखिए, बच्चों को इमेजिनेशन उनकी डेवलप करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको सिचुएशंस दे सकते हैं, ड्रामेटाइज करिए, सिचुएशन दे सकते हैं, स्टोरी लिखिए, सिचुएशन दे सकते हैं, ड्रॉ करिए। आप देखिए कितनी सारी एक्टिविटीज हैं जो टीचर्स कर सकते हैं अपने क्लास में। एंड एवरी, आई मीन, आई वुड सजेस्ट एवरी स्कूल शुड involved in all these things. अब फील्ड ट्रिप की बात करें, फील्ड, व्हाई फील्ड ट्रिप, यू नो, व्हाई हैव बीन एनकरेजिंग field trips? See, field trips are designed to enhance what children are being taught in the classroom. जो आप किताबों के जरिए पढ़ाते हो, एक्सप्लेनेशंस करते हो, उनको एक्चुअली वाकई दिखाने का समय होता है फील्ड ट्रिप, राइट? द गोल इज टू लेट स्टूडेंट्स सी, touch and experience things that would otherwise just be a line in a textbook or a picture on a classroom wall. जो हम पिक्चर्स में देखते हैं या किताबों में पढ़ते हैं, उसी एक्सपीरियंस को अगर हम बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में देते हैं तो बच्चे उसको ज्यादा अच्छे से एंजॉय भी करते हैं, उससे लर्न भी करते हैं। सो मेनी चिल्ड्रन आर लार्जली विजुअल लर्नर्स, देख के सीखने वाले कई सारे बच्चे होते हैं। उनको कोई चीज आप ऐसे दिखाते हो, उनसे करवा के लेते हो तो वो फटाफट सीखते हैं। सो विच मीन्स दे आर मोर लाइकली टू रिटेन इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स व्हेन दे कम फेस टू फेस विद देम। देखिए, आप किसी मेटल वर्क के बारे में क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे होता है, मेटल को हम, मेटल से सामान कैसे बनाते हैं, जोड़ता के जोड़, pieces of metal pieces, how are they linked together? All these things are supposed to be shown to children, right? अगर बच्चे देखेंगे तो उनको तुरंत समझ में आएगा, अच्छा तो जो फर्नीचर हम क्लास में यूज करते हैं ये कैसे बनता है। बच्चों को सोचने का और देखने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए नो, इफ यू से 45 से कम, देखिए, यू कैन डिवाइड योर क्लास इनटू टू पार्ट्स। इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हाफ योर क्लास कैन डू एक्टिविटीज इन द क्लास स्कूल, हाफ कैन गो फॉर योर फील्ड ट्रिप, हाफ कैन डू समथिंग एल्स। ये क्लास का नंबर बता के आप मुझे ये नहीं करिए, बिकॉज जितना भी नंबर आप ग्रुप एक्टिविटीज करेंगे तो बच्चे स्प्लिट हो जाते हैं ग्रुप में। सो इट इज पॉसिबल। All right. Offer an opportunity. Field trips offer an opportunity for students to get exposure to real people and events जो सच में दिखाई देता है। ऐसे देखिए, हम लोग बच्चों को कई बार सर्कस के बारे में लिखो, कहाँ उसके बारे में ऐसे लिखो, पिक्चर बनाओ बोलते हैं। फिर जब स्कूल से कई बार बच्चों को सर्कस दिखाने ले जाते हैं तो एक्चुअली देखते हैं, उसकी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों सीखते हैं। दो अच्छाइयां क्या है कि देखिए, फिजिकल फिटनेस कितनी जरूरी है, राइट? ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी कितनी जरूरी है, हम सिखाते हैं। और द अदर साइड इज, सी, देयर आर चिल्ड्रन इन दिस वर्ल्ड हु डू नॉट गेट learning experience because they come from backgrounds, family backgrounds where they cannot afford. So at this age they start working and they do dangerous works also. So children have to get to the real picture to understand what is right and what is wrong in life. Okay, so when they visit people and places, they are normally exposed to reality. जो स्कूल में हम सुनते आए हैं वो आप देखने लगते हैं। अब जब फील्ड ट्रिप आइडियाज क्या क्या हो सकते हैं, बोटैनिकल गार्डन जा सकते हैं, कम्युनिटी थिएटर, थिएटर्स, जैसे कभी कोई ऐसी मूवी लगी हो जो बच्चों के लायक हो तो आप थिएटर्स में ले जाके बच्चों को दिखा सकते हैं। कोई हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन आपके शहर में या आपके आसपास है तो आप वहां ले जा सकते हो, गार्डन्स में ले जा सकते हो। एक्सपोजर, जैसे बैंक दिखाना है, पोस्ट ऑफिस दिखाना है, छोटी छोटी चीजें भी जिनके बारे में खाली किताबों में पढ़ते हैं, दिखाइए, उनको समझाइए। वर्चुअल फील्ड ट्रिप भी पॉसिबल है। जिन बच्चे, जैसे आप बोलते हो ना, बहुत बड़ी क्लास है, हम नहीं ले जा सकते, हमारा स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता, वर्चुअल फील्ड ट्रिप भी बहुत अच्छी। अभी आप बताएं, आपको बताएं कि कोविड टाइम में सारे फील्ड ट्रिप्स वर्चुअली हो रहे थे। अगर आप देखेंगे तो वर्चुअल फील्ड ट्रिप की भी मतलब भंडार है ऑनलाइन। अगर आप ढूंढेंगे तो आप बाहर के देशों की अगर जगह बच्चों को बताना चाहें, दिखाना चाहे,
तो वर्चुअल फील्ड ट्रिप भी कर सकते हैं, आपको खाली ऑन स्क्रीन दिखाना पड़ेगा बच्चों को, राइट? सो अ फील्ड ट्रिप अलाउज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू गेट आउट ऑफ द फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लासरूम एंड कल्टिवेट शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। बच्चे जब बाहर जाते हैं और टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं, देखिए टीचर्स के लिए भी वो एक आउटिंग होती है, टीचर्स के लिए भी अ डे आउट होता है, उस रोज के सेम काइंड ऑफ वर्क से थोड़ी सी फुर्सत, तो आप इन चीजों को प्लान कर सकते हैं। School students are exposed to outside activities periodically through visits to places of historical, cultural and tourist importance। देखिए टूरिस्ट इंपॉर्टेंस वाली प्लेस में भी ले जा सकते हैं। अब देखिए आपके यहाँ आपके आसपास अच्छे मंदिर हैं, आपके आसपास रिवर्स हैं, और मतलब जैसे मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, तो कानपुर में गंगा जी है, तो गंगा के किनारे कितनी सारी चीजें हैं जो बच्चों को हम समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। गंगा के बारे में कहाँ से शुरू होती है, वो कानपुर तक कैसे पहुंचती है, ये बता सकते हैं हम लोग उनको। गंगा के आसपास कई सारी जैसे मंदिर और रिलीजियस प्लेसेस है। अगर आपका स्कूल मतलब सब तरह के रिलीजन को बिलीव करता है, तो सब तरह के रिलीजियस प्लेसेस में आप बच्चों को ले जा सकते हैं, सो दैट दे लर्न फ्रॉम इट, ओके। उसके अलावा म्यूजियम्स होती है, उसके अलावा लोकल आर्टिस्ट्स के साथ मीटिंग रखिए। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, उधर बच्चों को विजिट पे ले जाइए। 11th एंड 12th के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस विजिट करवाइए उनको, लॉ कॉलेजेस विजिट कराइए, डिग्री कॉलेजेस विजिट कराइए, जिससे बच्चों को पता चले कि आगे की लाइफ में क्या क्या कहाँ कहाँ मौजूद है और हम लोग कर सकते हैं, right? So this is something that you can do. Other than this, when you are in the class, what all school क्या क्या हो सकता है? On this day, dance, handwriting activities, abacus, वैदिक मैथ्स आपने सुना होगा, इट इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मेंटल मैथ सिस्टम बेस्ड ऑन 16 सूत्रास और वर्ड फॉर्मूलाज, राइट? और वैदिक मैथ्स अपना इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ है। अगर आपके आसपास कोई भी वैदिक मैथ्स से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हो तो उनको बुलवाइए, उनसे करवाइए। इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेजेस, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, अगर आप इंग्लिश, आपके बच्चे अगर इंग्लिश में वीक हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे इंग्लिश में इम्प्रोवाइज करें, तो स्पोकन लैंग्वेज क्लासेस रख सकते हैं, हर तरह की संस्कृत क्लास रख सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज की क्लासेस रख सकते हैं। फिर दूसरा है सेल्फ डिफेंस की क्लासेस है, आपने कराटे, जूडो, इस तरह की एक्टिविटीज की आपने उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया एक वीक में, और बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो देन यू कैन हैव वीकली क्लासेस फॉर देम, राइट? सो द peer group in each class where 4 to 5 groups can be formed। अब क्लास में क्या कर सकते हो आप, आपके क्लास में 50 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, इक्वली डिवाइड कर दीजिए 10 के ग्रुप में या 5 के ग्रुप में, और आप अलग अलग एक्टिविटीज उनको एक ही दिन में आराम से करा सकते हो। एक दिन में बच्चा आप एक्सचेंज कर सकते हो वीकली। आज बच्चों को 4 एक्टिविटीज में एक्सपोजर मिला है, अगले वीक अगले 4 में मिल जाएगा, ये जितने भी आपके पास मौजूद हैं, 2 है तो 2, 3 है तो 3। यू कैन हैव टाइम स्लॉट प्लान। फुल डे स्कूल है तो 5-6 घंटे बच्चे स्कूल में, तो 1-1 घंटे का आपने कोई एक्टिविटी प्लान कर दी तो बच्चे उसके लिए कर सकते हैं ना। इसमें क्या है, आप बच्चों में भी लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं। ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप लीडर, कैप्टन बना दीजिए, और वो रोटेशनल बेसिस पे रखिए, ठीक है? स्पोर्ट्स वाले दिन ये कैप्टन रहेगा, कल्चरल वाले दिन आपके ग्रुप का कैप्टन ये रहेगा, और डिवाइड इस तरह करिए कि मिक्सचर ऑफ चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास, राइट? सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज विद इन योर स्कूल प्रेमाइसेस आल्सो। इसमें ये भी होता है कि अगर बहुत बड़ा स्कूल है तो दे डिवाइड, और जैसे आपके शिफ्ट्स में वर्क करता है तो मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट में आप एक्टिविटीज उस हिसाब से भी प्लान कर सकते हो, राइट? सो लुक इनटू दीज पॉसिबिलिटीज। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, देखिए दुनिया भर के स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स,
देन यू हैव स्पोर्ट्स, बोर्ड गेम्स जो आप क्लास में भी बिठा के खिला सकते हो या छोटे स्पेस में भी बिठा के खिला सकते हो। आपने चेस खेलने के लिए बिठा दिया, आपने लूडो खेलने के लिए बिठा दिया, आपने कैरम खेलने के लिए बिठा दिया। आप अलग अलग गेम्स, बोर्ड गेम्स होती है, स्क्रैबल खेलने के लिए बिठा दिया। आपको सोचना है कि इंटेलेक्चुअल बिल्डिंग हम किस किस गेम में कर सकते हैं, उस तरह के गेम्स बच्चों को बिठा के खिलाएं। और बताइए, स्पोर्ट्स से मेंटल हेल्थ की कितनी डेवलपमेंट होती है, आपका मूड इंप्रूव होता है, इट एलिवेट्स योर सेल्फ एस्टीम, आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है, राइट। फिर इट लोवर्स योर रिस्क ऑफ डिप्रेशन। क्यों डिप्रेशन कब होता है? जब आपके पास मौका होता है बहुत कुछ सोच के बैठने का। जब आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा उल्टी सीधी सोच लाने के लिए, तो आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही करेंगे, राइट। देन you can have it also tires you, all these activities, तो आप अच्छे से सो सकते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल तो कम होता ही है, और मेंटल डेवलपमेंट होता है क्योंकि आप अपने ब्रेन को फीड कर रहे हैं लॉट ऑफ एक्टिविटीज के साथ, तो आपका ब्रेन चार्ज्ड रहता है। यू आर एबल टू डू लॉट ऑफ वर्क अलोंग विथ the other children in the class। दूसरी चीज है, क्योंकि आप ग्रुप में एक्टिविटीज कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, तो बच्चे बहुत और क्वालिटीज सीखते हैं, राइट। एक तो होता है स्पोर्ट्समैनशिप सीखते हैं, फिर एक दूसरे के साथ एकोमोडेट करना सीखते हैं, कभी वो लीडर कभी मैं लीडर, कभी मैं उसका फॉलोवर कभी वो मेरा फॉलोवर। सो दिस इज समथिंग दैट दे आर गेटिंग टू गेटिंग एक्सपोज्ड टू। फिजिकल फिटनेस तो बहुत जरूरी है। अब कोई बच्चे बोलते कि मुझे तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उनको जैसे ड्रिल करा सकते हैं। छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, आप म्यूजिक लगा दीजिए और म्यूजिकली आप एक्सरसाइज करें उनके साथ, तो दिस इज समथिंग दैट चिल्ड्रन लाइक ऑल्सो। सो मेक श्योर दैट देयर इज एन एक्सपोजर एंड मिक्सचर ऑफ all kinds of activities, right? Woodwork, electric work, solar energy projects, pottery can be done in school with the help of local carpenters, potters और electricians। छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना बच्चों को सिखा सकते हैं, राइट। आप सोलर एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स को स्कूल बुला सकते हैं, या आप ही के स्कूल के किसी टीचर को बोलिए कि कोई अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाए और उससे छोटे छोटे मॉडल्स स्कूल में बना के उससे सीखने की कोशिश करें। लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन इन द क्लास, इन द स्कूल, with the help of your own teachers as well as people experts from out। देखिए, हमारे पेरेंट्स भी इतने सारे एक्सपर्ट्स होते हैं किसी ना किसी फील्ड में। किसी दिन आप किसी डॉक्टर को बुला लीजिए, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वेटनरी डॉक्टर को बुलाइए स्कूल में, बच्चों से बोलिए। एक एक बहुत अच्छी एक्टिविटी मैंने देखी है जहां पर पेट्स डे मनाया गया था। सो बच्चे अपने पेट्स को स्कूल में लेके आते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स, विद सपोर्ट। जैसे अगर डॉग्स है या कैट्स है या रैबिट्स है, जो भी है, अलग अलग स्लॉट में स्पेस में आप उनको रखते हैं। और उसके बाद में फ्रेंडली एनिमल्स हैं तो वो फ्रेंडली एनिमल्स को ही एनकरेज करना चाहिए, उनको बुला के बच्चों को एक्सपोज करना, उनके बारे में बताना, एनिमल्स को कैसे ध्यान रखना है, उनकी क्या लाइकिंग्स और डिसलाइक्स होते हैं वो बच्चों को बताना। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बच्चों को सुनने और देखने में इंटरेस्ट होगा। सो लर्निंग इन स्कूल विदाउट कैरिंग स्कूल बैग्स में बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे मैंने बताया, को करिकुलर एक्टिविटीज है। आप उनके साथ में कॉम्पिटिशन्स तो आपकी एक है ही, जिसमें आपने हर तरह की कॉम्पिटिशन जो स्कूल्स में हो गई, स्टूडेंट क्लब्स बनाए, अलग अलग, इंग्लिश क्लब, मैथ्स क्लब, यू हैव एनवायरनमेंट क्लब, यू हैव म्यूजिक क्लब, अलग अलग क्लब्स बन गई। स्पीकर सीरीज, बाहर से स्पीकर्स को बुला के आप इंटरैक्ट करवाना, केस स्टडीज, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड केस स्टडीज प्रेजेंट करना, केस स्टडीज को स्टडी करना, उसके बारे में बड़े क्लासेस में आप कर सकते हो, उसके बारे में इन्फ्रेंसेस निकालना, उससे सीखना। ये भी हो सकता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कशॉप्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंडर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, बिजनेस प्लान्स। देखिए बच्चों को बहुत सिखाना बहुत अच्छा लगेगा एक्सपर्ट्स के थ्रू भी, और जैसे कॉमर्स की क्लास में होती
होती है, बच्चों को बिजनेस क्लास, छोटे छोटे क्लासेस में भी सिखाइए यूज ऑफ मनी, मनी को कैसे यूज करते हैं. यू कैन हैव फन फेयर इन योर स्कूल, छोटे छोटे फेयर, फूड एक्सचेंज प्रोग्राम, यू आर सेलिंग फूड इन द क्लास, जितना खर्च किया एट वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस, एंड देन with the money that you make, you do something for the class itself. Okay, cooperative learning होती है जब हम मिलजुल के बच्चों के साथ एक्टिविटी करते हैं. तो बच्चा सोचता है, पेयर में एक्टिविटी करता है, शेयरिंग करता है और ग्रुप में भी इंटरैक्ट करता है, राइट. एंड एक्टिविटी और एक्टिविटीज यूज्ड इन एन एजुकेशनल प्रोसेस to make students learn is activity based learning. Okay, this is through different activities. आप बच्चों को अलग अलग तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके. एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या क्या हो सकता है, देखिए नॉन फायर कुकिंग डे होता है स्कूल में. आप कुछ भी बच्चों से बोलिए कि चलिए भेलपुरी बनाएंगे, अलग अलग चीजें लाए, आपने भेलपुरी बना ली, स्कूल में मजा आ गया, राइट. फ्रूट चाट बना लिया. देयर कैन बी सो मेनी eatables that can be made without using the fire, right. That can be a party for the children themselves. अलग अलग बच्चों ने रॉ मटेरियल लाया, उसको जोड़ के हमने एक अच्छी सी डिश बनाई और सबने बैठ के उसको एंजॉय किया. When you're doing such an activity, you can give them nutritional value of that food. You can tell them what is the calories that are part of this, what is it that कौन सा फूड का सबसे हाईएस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू है. ये सारी चीजें भी आप बच्चों को बता सकते हैं. नाउ ऑब्जेक्टिव्स, देखिए ये दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. ऑब्जेक्टिव्स के साथ में आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू प्लान सर्टन थिंग्स. एक छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ बताऊंगी भी कैसे करना है. द बैगलेस स्कूलिंग इज एक्सपेक्टेड टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. क्यों करना है बैगलेस डेज, देखिए खाली टाइम पास के लिए नहीं करना है. वी आर डूइंग इट बिकॉज वी हैव टू learn something out of it. Okay, so this is something that we have to make sure that we are doing. Okay, so to provide exposure to a world outside their classroom and to transact that effect, contribute to day to day life. आप जब बाहर की लाइफ देखते हैं तभी समझ में आते हैं रियलिटी क्या होती है, राइट. रियलिटी से हम लोग कैसे अपने आप को कनेक्ट करते हैं. देखिए बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होता है, वेयर डज योर फादर वर्क, माय फादर वर्क्स इन अ बैंक. ओके, डू यू इवन नो हाउ द बैंक वर्क्स. Children should be exposed to that. They should learn from different places कि ये एक्टिविटी करते हैं. So we learn to respect that kind of work. पेरेंट्स को जो भी काम करते हैं बच्चों को वो वैल्यू समझ में आना चाहिए, तभी वो लोग उसको समझ पाएंगे, राइट. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली. बिल्ड ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग कैपेसिटी एंड प्रोवाइड स्कोप फॉर प्रैक्टिस. देखना भी है और उसमें से सीखना भी है, राइट. देख के सीखने का मतलब होता है कि आप कोई एक्टिविटी, जैसे बताया कि पॉटर को बुलाया, पॉटर को बुला के आपने क्या किया, पहले उसने बनाया फिर आपने बनाया, तो ये प्रैक्टिस भी होती है. और आपको ये भी समझ में आता है कि ये जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है. सो वी हैव टू वैल्यू पीपल हु वर्क हार्ड, right. Develop understanding of connectedness of community and interdependence. देखिए सोसाइटी पर हम कितना डिपेंडेंट है, सोसाइटी से हम कितना सीखते हैं और कितना हमारा कनेक्शन है. आज हम जो टिफिन में खाना लाते हैं, अगर आपको सिर्फ उतना ही बच्चों से डिस्कस करना है तो आप बता सकते हैं कितने लोगों की मेहनत के बाद हमें ये खाना नसीब होता है, right. So for that reason itself you should show them where it grows, how it grows, grow होने के बाद वो कहाँ पहुंचता है, क्या क्या processes होती है. These are things that can be shown to them. Exposure to the interconnectedness of learning that students do in the classroom with conceptual as well as practical application. जो चीजें हमने सीखी हैं किताबों में, उसको बाकायदा आंखों द्वारा देखने के बाद उससे कनेक्ट करना is a
वेरी वेरी डिफरेंट फीलिंग. ओके, डिग्निटी ऑफ लेबर मैंने आपको ऑलरेडी बताया. रिस्पेक्टिंग ऑल द काइंड्स ऑफ वर्क्स अराउंड अस बहुत जरूरी है. जब बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते हैं तब उनको समझ में आता है कि इसमें भी मेहनत है. आपने गार्डनर को बोला कि 10 बच्चों को आज अपने साथ लगा के गार्डनिंग करिए, तब उनको समझ में आएगा कि इतने सुंदर फूल जो हमारे आसपास लगे वो ऐसे ही नहीं लग जाते, इसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है. राइट? स्कूल को क्लीन रखने के लिए कितनी मेहनत लगती है. बस को आपकी स्कूल बस को साफ सुथरा रखने के लिए जो क्लीनर है वो कितनी मेहनत करता है. बस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो बच्चों को सिखा सकते हैं. मैंने कहा ना, विद इन द स्कूल इटसेल्फ आपके पास इतनी चीजें हैं दिखाने के लिए, बताने के लिए कि आपको आधा साल तो सिर्फ स्कूल की चीजें बताते बताते ही निकल जाएगा, बाहर की तो नंबर बाद में आएगा. सो यू कैन ऑलवेज डिवाइड द स्कूल स्टूडेंट्स, एंटायर स्कूल इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट वर्क. और फिर करियर ऑप्शंस बताने के लिए आप अलग अलग फील्ड के पेरेंट्स को बुला के बच्चों के साथ कनेक्ट करिए. उससे उनको पता चलेगा कि उन्होंने किस तैयारी से, देखिए आईआईटी और मेडिसिन ये तो बच्चों को पता होती है, उसमें भी अगर आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत करके या उनके बच्चों ने या आपके बच्चों के भाई बहनों ने अचीव किया है, तो उनको भी बुला के आप उनके बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. आपकी जो स्कूल की एलुमनाई है उसको यूटिलाइज करिए, क्योंकि स्कूल एलुमनाई विल सपोर्ट यू वेरी वेरी वेल इन दीज एक्टिविटीज. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. आपका मेन ऑब्जेक्टिव है लर्निंग एंड ऑल्सो टू हैव फन, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर teachers. Now there are steps to be followed for bagless activities. जब भी कोई bagless activity करते हैं तो हमको उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, तो पहला ये है डेट, एक्टिविटी, नेम ऑफ द एक्टिविटी. सबसे पहले डेट क्या है, कौन सी एक्टिविटी है, और नेम ऑफ द एक्टिविटी आप लिख लेते हैं. ठीक है, ये हमारा प्लानिंग स्टेज है. रैशनल बिटवीन इंक्लूडिंग बैगलेस एक्टिविटीज, क्या रैशनल है इसके पीछे, क्यों हम लोग, वाई बिहाइंड दिस एक्टिविटी, वाई एम आई डूइंग दिस एक्टिविटी. ओके, फिर बच्चों को इसकी ऑब्जेक्टिव बताना, मतलब 5% आपका जो टाइम है बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर हम ये एक्टिविटी करते हैं तो ये सीखने मिलता है, ये स्टेप्स से ये सीखने को मिलता है. सो दैट इज योर ऑब्जेक्टिव्स. नॉलेज की पॉइंट्स क्या होती है कि दिस इंक्लूड्स द एक्चुअल कंटेंट दैट इज बीइंग टॉट थ्रू दैट एक्टिविटी. एग्जैक्टली हम क्या सीख रहे हैं वो नॉलेज की पॉइंट्स होती है. की स्किल्स क्या है, इसमें क्या क्या डिफरेंट स्किल्स का यूटिलाइजेशन होगा, ये बच्चों को दिखाना जरूरी है, समझाना जरूरी है और इस्तेमाल करना जरूरी है. फिर मटेरियल्स क्या क्या यूज होने हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए. अब ओपनिंग कैसा होगा, सबसे पहले आप उसको एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे. इंट्रोडक्शन आप हफ्ते भर पहले भी कर सकते हैं कि ओके नेक्स्ट सैटरडे वी विल बी डूइंग एन एक्टिविटी, और उसको इतना एक्साइटिंग वे में प्रेजेंट करिए कि बच्चे उसका इंतजार करें. राइट, उसके बारे में बहुत सारा हाइप क्रिएट करिए, उसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दीजिए एंड देन यू एक्चुअली डू इट. राइट, इट इज इंपॉर्टेंट. क्लासरूम स्ट्रैटेजीज, अब क्लास के बच्चों के साथ कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हैं ये एक डिफरेंट थिंग है. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ द एक्टिविटी, अब कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड हैं टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी, कौन मतलब कैसे शुरू करना है, कहां से कौन कौन से स्टेप्स करते जाना है ये देखना है. फिर जब एक्टिविटी हो जाए तो आपको ये भी समझना है कि बच्चों को ये एक्टिविटी में से कितनी समझ आई. सो क्वेश्चंस, नाउ इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ क्विज, इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म, इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ समराइजेशन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एक्टिविटी यू डू. जैसे आप फील्ड ट्रिप पे लेके गए हैं तो आप उनको एक गूगल फॉर्म दे सकते हैं. अगर आप फील्ड ट्रिप पे लेके गए तो उनको बोल सकते हैं ओके आप पिक्टोरियली मुझे बताइए आपने क्या सीखा इसमें से. तो मतलब कई तरीके से आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं. कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें से लर्निंग क्या है, बेस्ट स्पीकर था तो वो क्यों बेस्ट स्पीकर था, उसके क्या पॉइंट्स थे जो आपको अच्छे लगे. सो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स लर्निंग आउट ऑफ दैट. ओके, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट, इसमें से और क्या क्या चीजें हम सीख सकते हैं. कई बार क्या होता है, मैंने जैसे बताया एक एक्टिविटी आपने करी है
कैन बी फॉलोड बाय से आपने कोई उनको यूट्यूब से कोई एक बहुत अच्छा सा वीडियो उससे रिलेटेड दिखा दिया, या उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, या उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेटिव मूवी दिखा दी, एनीथिंग कैन बी डन, राइट? क्लोजिंग होना चाहिए, फाइनल पार्ट ऑफ द सेशन वेयर द टीचर कंक्लूड्स द एक्टिविटी by asking the student to share or recap the content taught in words, and then later checking the understanding through any form that you gave. यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ करके मतलब बता रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ कि ये कर सकते हैं। जैसे ये है वेस्ट सेग्रीगेशन, कचरा को अलग अलग सेग्रीगेट करना, ये या वर्मी कंपोस्टिंग करना एक्टिविटी हो सकती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ वेस्ट सेग्रीगेशन लिया, वर्मी कंपोस्टिंग नहीं लिया, बिकॉज बहुत लंबा हो जाता है ये सेशन। फिर तो सबसे पहले डेट डाला, एक्टिविटी का नेम वेस्ट सेग्रीगेशन, इसके पीछे की थॉट रैशनल क्या है। एक्टिविटी वेस्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज ऑफ टुडेज वर्ल्ड, राइट? इट इज इंपेरेटिव फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अ प्लैनेट टू बी अवेयर अबाउट इट। दिस एक्टिविटी हेल्प्स टू स्टार्ट बिल्डिंग द हैबिट ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन एंड मैनेजमेंट। अब अगर आप स्कूल में इसका एम बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे इसको घर पे भी करने लगते हैं, राइट? ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द मैग्नानिमिटी ऑफ द वेस्ट जनरेशन प्रॉब्लम, मतलब जो इतना बड़ा इशू है इसको ये लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजिंग ऑफ वेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के लिए क्यों जरूरी है, और हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों होना जरूरी है, और ये वाला जो एक्टिविटी है सस्टेनेबल एक्टिविटी है कि नहीं, ये हमको समझाना। सस्टेनेबल इसलिए क्योंकि ये हम कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, राइट? फिर स्टूडेंट्स को वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट का सेग्रीगेशन हम समझा सकते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स क्या होती है वो समझा सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स विल रियलाइज दैट इफ दे मेक स्मॉल चेंजेस इन लाइफस्टाइल दे कैन हेल्प द प्लैनेट ऑल टुगेदर। देखिए ये एक चेन रिएक्शन होता है, आप एक बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे फैमिली को सिखाते हैं, एक फैमिली दूसरी को सिखाता है, ये दिस इज हाउ इट ग्रोज। सो हमें बच्चों को ऐसी चीजें सिखानी चाहिए जो उनको आप दूसरों के साथ भी उसको शेयर कर सके और उसको बढ़ा सके। अब इसमें नॉलेज की पॉइंट्स क्या थी कि वेट एंड ड्राई वेस्ट अलग अलग होती है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है, और वर्मी कंपोस्टिंग भी हम कर सकते हैं अगर हम आगे इसको बढ़ाना चाहे। whereas आई एम नॉट टेकिंग दैट पॉइंट हियर, बट आप कर सकते हो। की स्किल्स क्या हुई इसमें से, क्या है अब इसको करने के लिए हमें क्या क्या स्किल्स की जरूरत है। देखिए अगर हमें इन लाइफ वेस्ट सेग्रीगेशन करना है तो एक सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए, सही और गलत में डिफरेंशिएशन आना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए कि ये सही हमने किया, ये गलत था, इसको सेग्रीगेट करके इसमें से मेरी लर्निंग क्या है, और ग्रीन स्किल्स इसमें क्योंकि नेचर से रिलेटेड है तो नेचर से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स भी हम सीख सकते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कचरा, कंटेनर या पिट, या और पौधे, पौधे क्यों वो भी मैं बताऊंगी आगे, ठीक है? कुछ सैपलिंग्स क्लास में आप बोल सकते हैं, एक दो सैपलिंग्स टीचर खुद भी अरेंज कर सकती है अपने स्कूल गार्डन से भी, राइट? ओपनिंग क्या है? अ डिस्कशन इज कंडक्टेड बाय द टीचर विद द स्टूडेंट्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन, ये टीचर का ओपनिंग था। 10% ऑफ टाइम विल गो इन ओपनिंग, बच्चों से आपने शेयर किया, बच्चों ने अपना शेयर किया, ये हो गया। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में पार्ट 1 है द टीचर एक्सप्लेन्स द डिफरेंस, सॉरी क्लासरूम स्ट्रेटेजीज में आपने ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड किया, द टीचर कैन इवन मेक अ टाइम टेबल फॉर रोटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके? देन स्टेप बाय स्टेप में पहला स्टेप है द टीचर एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड ड्राई वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये अब टीचर ने एक्सप्लेन किया। फिर द क्लासरूम स्कूल ट्रैश इज सेपरेटेड यूजिंग गाइडेड प्रैक्टिस। अब क्या किया, क्लास का ही डस्टबिन को हमने पहले सेग्रीगेट करने की कोशिश करी। आप हैंड ग्लव्स पहन लीजिए जैसे भी आप करना चाहे, या टोंग्स यूज करिए जैसे भी आप करना चाहे। देन यू कैन टेल देम, देखिए खाने की चीजें जो आपने फूड वेस्ट डाला है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, और आपने जैसे प्लास्टिक का कवर डाला या फॉइल पेपर डाला तो ये नॉन डिग्रेडेबल हो गया। यू कैन
वेट और ड्राई डिफरेंस आप क्लासरूम के अंदर भी बच्चों को सिखा सकते हैं। कई बार बच्चे ऐसा डिस्पोजेबल वाला टिफिन बॉक्स लाते हैं जो आप डस्टबिन में फेंक देते हैं, मम्मा बोलती कि लेट इट गो, तो आपने उसको क्लीन करवा के उसमें मिट्टी भर के कोई प्लांट लगवा दिया, देखिए तो वो आपका यूसेज ऑफ ये भी हो गया, राइट। A separate container pit is allocated for dumping this wet waste on the school terrace around। अब क्या किया आपने, बच्चों को सिखाया कि अब हम लोग, ये तो क्लासरूम वेस्ट है, अब हम लोग के स्कूल में अलग अलग वेस्ट बिन्स रखी है, अब से हम लोग अपना वेस्ट अलग अलग बिन में डालेंगे। अगर ये एक्टिविटी आप साइमल्टेनियसली पूरे स्कूल में एक दिन में करते हैं तो अगले दिन से आपका ड्राई एंड वेट वेस्ट सेग्रीगेट होना शुरू हो जाएगा पूरे स्कूल में। स्कूल ओनली हैज टू मेक एन एफर्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर प्लेसेस to dump this kind of different kind of garbage. Okay, some plants can be also planted in the containers that can be an example of soilless gardening that students can implement even at home। seeds डाल के, कई बार होता है ना वेजिटेबल को कट करके उसके अंदर भी दबा के, सीड दबा के फिर उसको मिट्टी में दबा देते हैं तो कई बार उससे भी निकल आता है। कटिंग्स ऑफ vegetables planted can also help you to grow plants, you can teach them all that। students learn to distinguish between wet and dry waste and can identify it based on the examples taught by the teacher। the student practices segregation of waste every day and plants a sapling in the classroom in a wet waste pit or container। ये एक एक्टिविटी अगर आप बच्चों के साथ करते हैं तो आपको वो प्लांट उसके बाद में गार्डन में गार्डनर के पास ले जाकर, या बच्चे अपना अपना प्लांट लगाते हैं तो घर ले जा सकते हैं, स्कूल में एक लगाया जा रहा है तो वो आपके स्कूल के गार्डन के लिए जा सकता है। देखिए एक एग्जाम्पल दिया बिफोर एंड आफ्टर का, एक कंटेनर था जो फेंका जाता है, उस कंटेनर को हमने रीयूज किया है कट करके उस पे प्लांट लगा के। तो बच्चों को आप कुछ भी इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज बता सकते हैं। checking for understanding, the teacher shows different items found in the trash and asks students to identify them as wet, dry or biodegradable or non biodegradable। then this can be done in the form of quiz, फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हैं, पेयर आंसर कर सकते हैं। टीचर उसके बाद में एक एक्टिविटी कर सकती है, ओके आई विल शो यू सर्टेन थिंग्स, टेल मी इज इट बायोडिग्रेडेबल और नॉट, इज इट अ वेट गार्बेज और ड्राई, बच्चों से आप पूछ सकते हो। एंड में आप जैसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस कॉन्सेप्ट, शेयरिंग वीडियो लिंक्स और डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेशंस कैन बी डन विथ द चिल्ड्रन सो दैट दे लर्न फ्रॉम इट। ओके, क्लोजिंग में टीचर बताती है कि सेल्फ डिसिप्लिन हम लोग स्कूल में और घर में रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, कि हर रोज हम लोग अपना डस्टबिन का जो कचरा है उसको हम लोग एंड ऑफ द डे पे रो वाइज आप उसको काम दीजिए, पेयर ड्यूटी दीजिए कि इन पेयर ये हम लोग सेग्रीगेशन करेंगे, आज फर्स्ट रो वाले बच्चे करेंगे, कल दूसरे तीसरे, ऐसे पूरी क्लास की ड्यूटी लगा दीजिए, महीने भर में सबका नंबर आ जाएगा एंड दे विल बी डूइंग दिस एक्टिविटी इन द स्कूल। स्कूल में आप कंपोस्ट पिट बना सकते हैं, कंपोस्ट पिट में वेजिटेबल वेस्ट, लीव्स, ये सारे वेस्टेज को लेके खाद बनाने का काम, ठीक है, ये कर सकते हैं। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कर सकते हैं। देखिए एक्टिविटीज अनलिमिटेड है, आप जितना चाहें उतना प्रैक्टिस स्कूल में कर सकते हैं, और ये सारी एक्टिविटीज है ये बैगलेस एक्टिविटी के अंडर आ सकती है, राइट। सो द चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल मेक our country make they are the makers for tomorrow, right। the way we bring them up will determine the future of the country। जैसे हम सिखाएंगे वो सीखेंगे और वही वो इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। सो व्हाट वी लर्न विथ प्लेजर वी नेवर फॉरगेट। बच्चे जो मस्ती मजाक खेल से सीखते हैं वो जिंदगी भर याद रखते हैं, राइट। सो वी नीड टू मेक एजुकेशन सो मच फन दैट स्टूडेंट्स can't help but learn। मतलब हर चीज से सीखने मिले उनको, आप उनको
अननोइंगली भी सिखा दें कुछ ना कुछ, राइट? सो स्कूल लाइफ इज द टाइम टू हैव अनलिमिटेड फन वाइल लर्निंग। हर चीज में, हर एक्टिविटी में जो आप बच्चों के साथ करते हैं, उसमें से वो लोग सीखते हैं, उसमें से वो लोग बहुत सारे लाइफ लेसन्स लेते हैं। द मोर यू मेक इट इजी फॉर योर किड्स, द मोर यू रिमूव द स्ट्रगल नेसेसरी फॉर लर्निंग। जितना आसान, जितना एक्टिविटीज के थ्रू आप सिखाएंगे, और जैसे मैंने बताया डियर टीचर्स, जीरो एक्सपेंस के साथ भी आप लोग हजारों एक्टिविटीज कर सकते हो। 1 रुपए का खर्चा नहीं है, आप समझ के चलिए। आपको सिर्फ सोचने की जरूरत है कि मैं ऐसी कौन सी एक्टिविटी करूं मेरे क्लास के साथ जहां पे बच्चा मैक्सिमम सीखे और वो एंजॉय भी करे उसको, बिकॉज एंजॉयमेंट इज व्हाट विल मेक देम लर्न। आप जिन लोगों से बच्चों को मिलवाओगे उनके साथ भी आपको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि आप 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर नहीं चाहिए, आप पॉइंटर्स में बच्चों के साथ बात करिए। आपको मैं सिर्फ 15-20 मिनट या आधा घंटा दूंगा, उसमें आप सबसे अच्छी तरीके से हमारे बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। बिकॉज ये भी ध्यान रखना है कि उनकी अटेंशन स्पैन बहुत छोटी होती है। अटेंशन स्पैन छोटी होगी तो बच्चे सीखेंगे उतना ही जितना वो ध्यान देंगे। सो मेक श्योर दैट एवरी एक्टिविटी इज डन इन सच अ वे वेर इन दे कैन एंजॉय। आप जो मस्ती वाली एक्टिविटीज करेंगे ना, एरोबिक्स करा ली बच्चों से, म्यूजिक लगा दिया बढ़िया सा, उसके साथ एक्सरसाइज करा दी, कितना मजा आता है। वही आप धूप में खड़े गए 1 2 3 4 ड्रिल कराते हैं तो बच्चे इरिटेट होने लगते हैं। आपको सोचना है कि आप इसको इनोवेट कैसे कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूं कि हर चीज आप ड्रिल भी कराते हो तो अगर म्यूजिक के साथ कराते हो, ड्रम बीट के साथ कराते हो, या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ कराते हो तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ करेंगे। वहीं आप डिसइंटरेस्टेड होकर कोने में बैठ के 1 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे तो बच्चों को आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, राइट? सो मेक श्योर एवरी एक्टिविटी दैट यू प्लान is in such a way that children will enjoy. अब एक और बात बता दूं कि स्कूल के सारे टीचर्स अपनी एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आज क्लास 8 ने ये एक्टिविटी करी है, नेक्स्ट वीक क्लास 9 कर सकता है। क्लास 1 to 4 में 1 and 2 ने ये अभी किया है तो 3 and 4 अगली बार कर लेगा। सो यू कैन पुट ऑल एक्टिविटीज इन रोटेशन। कोई, आप ये बोलेंगे ना हम सोच नहीं सकते, हमारे पास बच्चे ज्यादा है, हमारे पास टाइम नहीं है, ये सब बहाने हैं। लेट मी टेल यू, ये सब बहाने हैं। बिकॉज अगर आप चाहेंगे तो जितने भी बच्चे हैं उनको ग्रुप पे डिवाइड कर लेंगे ना तो सारी एक्टिविटीज हो सकती है। 1 2 टीचर मिलके करिए, 2 टीचर मिलके 60 बच्चों के साथ एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं। आपको सिर्फ ग्रुप क्रिएट करना आना चाहिए और आपका होमवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, आपका प्लानिंग स्ट्रांग होना चाहिए। आप पूरी तैयारी के साथ अगर जाएंगे तो आपका सेशन 100% सक्सेसफुल होगा, right? So this was my session on planning bagless days. Thank you so much. Keep learning, keep growing, my dear teachers. I hope this was enjoyable for you and you learned from this. Thank you so much for being part of this session today, because I'm glad today all of you could make it and enjoy being part of this session. Thank you so much. Have a blessed day. All the teachers who are here, are rock stars, I would say. And why do I say that? Because हम लोग टीचर ऐसे ही नहीं बने हैं, हम लोग टीचर्स इसलिए बने हैं क्योंकि हमने ये चॉइस बनाई थी, right? We made a choice to become teachers. So now we have to give back our best to make sure that students also like us, learn from us, and we give them a very, very enjoyable way of learning. Thank you so much. If there are any questions, I am ready to take up. You can put it down in the chat box if there are any questions. Thank you so much for all the kind words that you're writing in the chat box. It makes my day. It is a pleasure for me to, interact with teachers. That is something that I really love doing. And that is why I come up with different kinds of sessions. And it is nice to see that each one is finding it interesting. Thank you so much. Thank you so much for all the praises and all the good
Sessions. No, I don't put my sessions on YouTube, nothing like that, because I believe in having an interaction directly with teachers. I think this is the best way that I can contribute better. Thank you so much. And thank you, Patliputra Sahodaya School Committee, for inviting me for this session. It has been my pleasure to interact with all the teachers. Thank you, ma'am. Thank you so much. Somebody is asked, how can we teach slow learners? देखिए, slow learners भी learners ही होते हैं. वो अपनी space और अपने time के हिसाब से सीखते हैं, ठीक है? उनके लिए आपको अपना speed कम रखना पड़ेगा, activities को थोड़ा और closely समझाना पड़ेगा, और tasks जब देते हैं उनको time to submit back ज्यादा दीजिए. बच्चे सीखते हैं, उनके सबके अपने अपने तरीके होते हैं. कोई लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं, कोई सुन के सीखता है, कोई पढ़ के सीखता है. पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस तरह का लर्नर है. उस हिसाब से आप हर तरह के बच्चों के साथ क्लास में टीचिंग कर सकते हैं. किसी ने लिखा है, someone has written that when you do activities children make a lot of noise. देखिए, बच्चे हैं, आवाज तो करेंगे. आप टीचर है तो आपको कम से कम डिसिप्लिन मेंटेन करना आना चाहिए. देखिए, जब आप ग्रुप में एक्टिविटी देते हैं तो आप उनको ये भी बताइए कि ग्रुप में सबको डिसिप्लिन के भी पॉइंट्स मिलते हैं, एंड द बेस्ट ग्रुप will have some kind of incentive being given. Incentive can be in different forms. You can tell them, okay, the 5 children who have been part of that group will be the monitor for the next week. Different kinds of monitor बना दीजिए, बड़े खुश हो जाते हैं बच्चे. उनको बोलिए कि you will be getting to those that particular team will get to decide which game to play, or which which chapter to teach in the class. आप उनको सेलेक्ट करने का मौका दीजिए. बच्चे डिसिप्लिन्ड तब होते हैं जब उनके इच्छा के मुताबिक आप एक्टिविटी को मोल्ड करते हैं. ठीक है, आपको डिसिप्लिन हैंडल करना आना चाहिए. बच्चे शोर तभी मचाएंगे जब आपको डिसिप्लिन रखना नहीं आता. वीक स्टूडेंट्स के साथ भी, मेंटली वीक, देखिए, टीचिंग मेंटली वीक स्टूडेंट्स, आई डू नॉट नो, आई डोंट लाइक दिस टर्म मेंटली वीक. फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगी बच्चों में, तो उनको पहले स्कूल काउंसलर के थ्रू आइडेंटिफाई कराइए, वो बहुत जरूरी है. ठीक है, और बहुत ज्यादा लर्निंग डिसेबिलिटी के केस में उनको एक्सटर्नल सपोर्ट भी लेना पड़ेगा. देखिए, एज अ टीचर, नॉर्मल लेवल्स के बच्चों को, नॉर्मल लेवल तक की लर्निंग डिसेबिलिटीज हम लोग हैंडल कर सकते हैं. जहां पर इंटरवेंशन काउंसलर की जरूरत है, वी हैव टू टेक दैट सपोर्ट. ठीक है, काउंसलर हुआ, साइकोलॉजिस्ट हुआ, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट लेवल्स. ऑल राइट, I think that is all. Thank you so much. I would take your leave. Namaste. Have a wonderful day.